What is collision? Collision means a pre-interaction between two or more bodies where they exert strong forces on each other are called collision. यहाँ पे देखिए body A moves with same path in body B and after sometimes later they collide each other, that is called collision. Types of collision. Collision three types. Number one elastic collision, number two inelastic collision और number three perfectly inelastic collision. देखिए पहले इलास्टिक कोलिशन क्या हुआ, यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिशन, दैट इज मोमेंटम कंजर्व. इलास्टिक कोलिशन में मोमेंटम कंजर्व, दैट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिशन पी आई इक्वल्स टू एम वी और यहाँ पे पी ए इक्वल्स टू पी आई इक्वल्स टू एम यू और पी ए इक्वल्स टू एम वी. Total momentum conserved and kinetic energy also conserved. Before collision kinetic energy equals to after collision kinetic energy. अब देखिए inelastic collision क्या हुआ? The inelastic collision total momentum conserved. Obviously यहाँ पे same condition. Total momentum conserved. That means kinetic energy before collision and kinetic energy after collision का जो inelastic collision में हुआ. तो inelastic collision में फिर देखेंगे यहाँ पे but kinetic energy not conserved. इनेलास्टिक कोलिशन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, तो इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे जाएंगे, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा वह कहाँ पे जाएंगे, इट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी और परमानेंट डिफॉर्मेशन. ठीक है, तो इनेलास्टिक कोलिशन में क्या होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व. Loss of kinetic energy is converted into heat energy, sound energy or permanent deformation. देखिए थ्री टाइप जो है perfectly inelastic collision. Perfectly inelastic collision कहाँ पे होता है, a specific type of inelastic collision. यहाँ पे क्या देखेंगे, where two bodies, where the bodies stick together, where the bodies stick together. Bodies stick together, like body, first body, second body, after collision stick together. After the impact and move with a single common velocity. After the impact and move with a single common velocity. ये भी देखिए पहले v1 velocity फिर v इसका second body के लिए v2 velocity, but move with a single velocity. Finally they will move with single velocity v. This type of collision result is the मैक्सिमम पॉसिबल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब एक काइनेटिक एनर्जी लॉस होने के लिए चांस बहुत है, मैक्सिमम है. तो देखिए फर्स्ट बॉडी ए इसका मास m1, इसका वेलोसिटी v1, सेकंड बॉडी b इसका मास v, इसका मास m2, वेलोसिटी v2. दे कोलाइड इच अदर एंड आफ्टर कोलिशन दे स्टिक टुगेदर एंड इसका वेलोसिटी v कॉमन वेलोसिटी. सो इसलिए बिफोर कोलिशन या फिर काइनेटिक एनर्जी k i इनिशियल काइनेटिक एनर्जी half into m1 v1 square plus half into m2 v2 square. इसका बिफोर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इनेलास्टिक कोलिशन. और आफ्टर कोलिशन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, इसका कॉमन वेलोसिटी v. सो इसलिए वी कैन राइट हियर ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ into m1 plus m2 into कॉमन वेलोसिटी v स्क्वायर. ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिशन. ठीक है, प्रॉब्लम्स कोलिशन बहुत. Question: three blocks A, B, C are lying on a smooth horizontal surface shown in the figure. ये तो यहाँ पे figure है A, B, C. A, B have equal masses. A का mass और B का mass दोनों equal masses M. C has mass capital M. ब्लॉक A is given an initial speed v. इसका स्पीड क्या होता है v towards B due to which it collides with C, also perfectly inelastic, carrying 5/6 of the initial kinetic energy lost in whole process.
What is the value of capital M by small m? Very important topics. ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आया था जेई मेन 9th जनवरी 2019। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। फिर रीडिंग करेंगे। The block A, B, C are lying on a smooth horizontal surface as shown in the figure. AB have equal mass as small m. Whole C has mass capital M. Block A is given an initial speed B towards B. Due to which it collides C, also perfectly inelastic, killing 5/6 of the initial kinetic energy lost in whole process. What is the value of capital M by small m? देखिए कैसे हुआ इसका प्रॉब्लम से। देखिए यहाँ पे बिफोर कोलिशन क्या हुआ, ए पार्टिकल जो इसका मास m, ए का वेलोसिटी ऑलरेडी गिवन, ए का वेलोसिटी भी, बट बी पार्टिकल जो है बिफोर कोलिशन उसको वेलोसिटी v इक्वल्स टू 0 एंड सी पार्टिकल जो है उसको वेलोसिटी v इक्वल्स टू आल्सो 0। सो बिफोर कोलिशन टोटल एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हाफ mv स्क्वायर। बिफोर कोलिशन टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। देखिए ठीक है ना, बिफोर कोलिशन टोटल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में क्या हुआ, देखिए बोला परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन का कंडीशन क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। इसका मीनिंग क्या हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन का मीनिंग क्या हुआ, जो मोमेंटम कौन-सा है, मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। क्या हुआ, मोमेंटम बिफोर कोलिशन इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिशन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन। इसके बाद क्या हुआ, जे काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस्ट, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। अब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन में क्या हुआ, दोनों एक साथ में चलता रहा है। देखिए ब्लॉक सपोज ए, इसका मास m एंड b, इसका मास b m, ठीक है, दोनों एक साथ में जाएंगे। इसके स्ट्राइक होने के बाद क्या कर रहा है, a b एक साथ चल रहा है, इसका वेलोसिटी क्या हुआ, v, कॉमन वेलोसिटी v हुआ। ठीक है, तो इसलिए फास्ट कंडीशन, फास्ट क्या हुआ, देखिए फास्ट कंडीशन में क्या बोला था, जे ए वाला जो इसका वेलोसिटी क्या हुआ, v है। फास्ट कंडीशन देखो इस न्यूमेरिकल का फास्ट कंडीशन में क्या लिखेंगे, जे ए का वेलोसिटी v, सो बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम, बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम equals to after collision total momentum, before collision total momentum equals to after collision total momentum। before collision total momentum क्या है, जे a के लिए मास m
वेलोसिटी v प्लस b के लिए मास m, वेलोसिटी क्या हुआ 0, ठीक है ना। इसके बाद परपेंडिकुलर इलास्टिक कोलिजन दोनों एक साथ में चल रहा है, इसलिए क्या हुआ m प्लस m इनटू इसका एक तो वेलोसिटी चाहिए, कॉमन वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का नाम क्या हुआ v1, इस वेलोसिटी का नाम क्या हुआ v1। फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ v1, ठीक है ना। देखिए सो v1 इक्वल्स टू क्या हुआ m into v divided by twice of m, so finally v1 equals to v by 2, v1 equals to क्या हुआ v by 2 हुआ, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हुआ, फिर देखिए सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड केस में फर्स्ट केस तो ये हुआ था जब v1 का वेलोसिटी कैलकुलेट करना, सेकेंड केस में ए m1 पार्टिकल जो है स्मॉल m, ए पार्टिकल, इसका v वेलोसिटी, b पार्टिकल है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है देख, लेकिन दोनों एक साथ हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, इसके v1 वेलोसिटी में जाएंगे, इसके टास्क आएंगे कि इसका कैपिटल M कर सकता है ए बी और इसके साथ कैपिटल C, ए बी सी तीनों एक साथ चल रहा है, अभी तीनों एक साथ चल रहा है, इसलिए टोटल मास क्या हुआ, इसलिए देखिए इसका m, इसका कैपिटल M, टोटल मास क्या हुआ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, पहले 2m प्लस कैपिटल M हुआ कि टोटल मास क्या हुआ 2m प्लस कैपिटल M। पहले यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यह भी क्या होगा सेकेंड कंडीशन में, लिखिए सेकेंड कंडीशन में पहले क्या हुआ कि दोनों एक साथ में है, दोनों एक साथ में है, इसलिए टोटल मास ट्वाइस ऑफ m इनटू वेलोसिटी v1, इसका बिफोर कोलिजन मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन में क्या हुआ तीनों एक साथ में हुआ, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ m प्लस कैपिटल M इनटू इसका कॉमन वेलोसिटी तो चाहिए, इसका कॉमन वेलोसिटी क्या लेंगे v फाइनल, सो v फाइनल, v फाइनल हुआ, तीनों एक साथ में चलेंगे, इसके वेलोसिटी v फाइनल। सो देखिए ट्वाइस ऑफ m इनटू v1 का वेलोसिटी v by 2 पहले कैलकुलेट कर लिया था, इक्वल्स टू क्या हुआ जो ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इनटू v फाइनल, ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इनटू v फाइनल। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ जो v फाइनल इक्वल्स टू क्या है, टू कट m v इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस कैपिटल M इनटू v फाइनल, सो v फाइनल इक्वल्स टू क्या हुआ जो m इनटू v डिवाइडेड बाय 2 इनटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसका v फाइनल का वैल्यू। अगर v फाइनल का वैल्यू हुआ तो ऑटोमेटिकली वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी kF फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इनटू mv स्क्वायर, f मींस टोटल मास, टोटल मास ये पे क्या हुआ हाफ इनटू ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इनटू v स्क्वायर मींस v फाइनल स्क्वायर, इसके बाद क्या हुआ हाफ इनटू ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इनटू v फाइनल मींस mv डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इसका होल स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M इसका होल स्क्वायर। फाइनली क्या आएगा देखिए इसके 8 ट्वाइस m प्लस कैपिटल M काट दें, फाइनली क्या हुआ हाफ इनटू
एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम प्लस कैपिटल एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एम प्लस कैपिटल एम। इसका क्या होगा कि फाइनल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये पे क्या हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले कैलकुलेट हुआ था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी यही है। इसके बाद फिर क्वेश्चन का एक तो कंडीशन दिया था, क्वेश्चन का एक तो कंडीशन दिया था। क्या कंडीशन हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला था द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देखिए क्वेश्चन में बोला था जे the combined mass collide with C and also perfectly inelastically 5/6 of initial kinetic energy। पहले loss of kinetic energy क्या बोला था? loss of kinetic energy equals to 5/6 into initial kinetic energy। loss of kinetic energy बोला था। पहले loss of kinetic energy होने का बाद kinetic energy का rest of kinetic energy पहले क्या हुआ? लॉस कितना हुआ? सो रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हुआ 1 माइनस 5/6 इनटू k ऑफ i। ठीक है ना? पहले 1 माइनस 5/6 मींस 6 माइनस 5/6 इनटू ki। सो फाइनली 1/6 ki ये होता है रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले इसीलिए रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। That means 1/6 into ki। ki means क्या हुआ हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। ki का वैल्यू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है ना? ki का वैल्यू क्या हुआ हाफ m v स्क्वायर। वो जो रेस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका वैल्यू किसका साथ इक्वल हुआ? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल। इसका वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वल हो। सो रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? So we can write remaining kinetic energy, remaining kinetic energy. So remaining kinetic energy equals to final kinetic energy equals to 1/6 into initial kinetic energy। ये इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है? इक्वल करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अरे फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट मींस रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ ये पे जो हाफ इनटू m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m प्लस कैपिटल M। ये वाला रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/6 इनटू हाफ m v स्क्वायर। ठीक है? 1/6 इनटू हाफ m v स्क्वायर। पहले बोथ साइड्स में क्या करेंगे हाफ m v स्क्वायर काट देंगे बोथ साइड में। हाफ m v स्क्वायर काट फाइनली क्या हुआ जो 1/2m प्लस कैपिटल M इक्वल्स टू 1/6। ठीक है ना? 1/2m प्लस कैपिटल M इंटू 1/6। ये पे m स्क्वायर है, तो हाफ m v स्क्वायर काट गया, ये पे m है। तो m बाई देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m प्लस m इंटू हाफ। तो इसलिए क्या हुआ ये m। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इंटू स्मॉल m इक्वल्स टू 2m प्लस कैपिटल M। ठीक है ना? 6 into small m equals to 2m plus capital M। So finally क्या हुआ जो 6am minus 2m equals to capital M। 6m minus 2m equals to capital M। So 4 into small m equals to capital M। So we can write capital M by small m equals to 4। कैपिटल M by small m equals to 4। इस प्रॉब्लम्स का जीस्ट क्या हुआ मैं बता देखिए पहले ए बी दोनों ए बी सी तीनों ब्लॉक है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जेई मेन का क्वेश्चन है। ए बी स्मॉल ए स्मॉल ए नहीं ए स्मॉल मास बी स्मॉल मास दोनों मास सेम है, लेकिन सी का मास थोड़ा अलग है। सी का मास कैपिटल है। दोनों एक साथ में चलने स्टार्ट करेंगे। पहले ए का वेलोसिटी बी और इसका वेलोसिटी 0, इसका वेलोसिटी 0। तो बिफोर कोलिजन बी एंड सी का वेलोसिटी 0 होता है, लेकिन ए का वेलोसिटी v होता है। तो इसलिए अगर मूवमेंट करेंगे तो क्या हुआ पहले हाफ m v स्क्वायर दैट मींस a का काइनेटिक एनर्जी है, b c का कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि a मूवमेंट करेंगे b के साथ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा।
अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिशन हो जाएगा तो बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम, दैट मींस m बिफोर कोलिशन टोटल मोमेंटम m into v इक्वल्स टू के दोनों एक साथ मास ऐड करेंगे m प्लस m फर्स्ट कंडीशन में into v1, ठीक है, इसलिए v1 का वैल्यू निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, तीनों एक साथ में चलेंगे, इसलिए फिर टोटल मास कैलकुलेट करना चाहिए। टोटल मास इसके साथ ऑटोमेटिकली Vm का वैल्यू निकल जाएगा, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाने के बाद ये भी क्वेश्चन में बोला था, जे कंबाइंड मास कोलाइड्स विद C also partially inelastically 5/6 of its initial kinetic energy. The initial kinetic energy is lost in whole process. That means 5/6 लॉस हुआ, तो रेस्ट कितना हुआ, रेस्ट अच्छा 1 minus 5/6, that means 1/6 रेस्ट ऑफ एनर्जी। दिस रेस्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी साथ इक्वल हुआ। सो वी कैन राइट 1/6 into kinetic energy equals to final kinetic energy, 1/6 into kinetic energy equals to final kinetic energy। सो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन होने के बाद कैपिटल M by स्मॉल m equals to 4 आया। ओके बाय।